हाँ तो हमने लगाना होगा, हमने इसका एडिट कर दिया, पीपीटी कौन सी लगा ना, हाँ मैंने कर दिया था, आदत है ये मैंने कर दिया ना, बना दिया सबको बना दिया, बस आपने ये ऐड करना नेक्स्ट डेट, और कुछ नहीं करना, बस ये आपने ये सब्जेक्ट भाई दिखाओ तो मैं दिखाऊंगा यार, बस मतलब क्या चाहते हो, चाहते हो कि हम तुम्हें खुश हो जाओ, हमने कौन सी चाहते हो देखो जरा, तो 2 बजे 2 बजे
Assalamu alaikum guys, hope you are having fun. This is Raza and welcome to my class. This is the first class. Most of you are aware of who I am, and those who are not will get to know me over the course of time. But before we kick things off, there are a lot of people also in my class who are skipping there or they're changing their subjects and they're taking commerce in their A levels. They previously did not have economics in O levels, or this is what I am led to believe. I am providing you a link. Please enter this. You can play the quiz directly from the browser, or if you have the app, the quizzes app, you can. Okay, Shahid, message well received. But please get the administration to do something about it, because either get the time changed for the class, right? So anyway. Okay, guys, please join. I have given you 25 people, 23 people in my class. Wow, this looks, so this is a small quiz. Don't worry about it. It is just for me to understand a few things about you. Yeah, so please join. I will just share my screen. There are two people, जो कि ज़ाहिरी बात है पुराना जानते हैं. जो people who are not very familiar with this platform, I have Sayyida Seemal Rizvi. I am not very sure. Samavia Shahid, I remember from the workshops. Mustafa Suhail also remember from the workshops. Muhammad Walid Markatia doesn't ring a bell. Khadija Rafiq doesn't ring a bell either. Haris Balot Saab. Hamza Ansari, Danish Farooq. Bushra Bhutto. Oh wow. Can't hear you properly, sir. You can't hear me properly. Why can't you hear me properly? Is my voice breaking? Is it too much of noise? What's the issue? My voice is breaking. Just hold on. Is this better? Acha, can everyone say they can hear me properly? Can everyone say they can hear me properly, please? I have given you, Sir Imran Sahab says in the mail, you can never change your order, the schedule always, inshallah. Acha, okay. Chalo, these are things which can be sorted out in time. Ye ho gaya, I can hear you properly. Good. So I'm sending you the quizzes link again. Guys, please join the quizzes link as soon as you can. I can see only 4 people up till now. I have Ayan Faisal, Hassan Rehan, Mahid and Danish. This is not fair. The link is in your chat and also on the WhatsApp group. The quizzes link, please join it. I can see a lot more names on my, you can play directly from the web browser. Mohammed Marketia Saab is here. Great. Let me share my screen. Sir, where is the link? It was on the chat group. Sir, it is showing, sorry. Gee, किधर चला गए आप? Sir, it is showing something else. What is it showing? This is the thing. And if you want, if you are on, और इसी लिंक से ये सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं. Ashar Ahmed Saab, 804250. 804250 is the code. How are you using quizzes? How am I using quizzes? What do you mean? How are you using quizzes? It's saying this. So how are you using quizzes? What are you using it on? Through browser and stuff like that. आप अभी अगर आप पहली दफे रजिस्टर कर रहे हैं भाईजान, आप रजिस्टर करें. You have to follow the entire process and please do it. कोई ऐसा मसला नहीं है. I'm waiting. Good. Ibrahim is here. Marketia Saab is here. Azhar Khalid is here. Manhoor Fatma is here. Good. Apart from Ashar Amin, is anyone else facing any problem?
Apart from Ashir Amir, Hamza 2002 has joined in. Wow, Hamza, is that your birth year? 2002. What was I doing in 2002? Oh, I was in IBA. Babies you are. Chalo. Asha, Ashir Amir is here. Good. Excellent. Who else? Who else? Come on, guys. Quickly, quickly, quickly. Mr. Baloch is here. 658. Great. Sami Tahir is here. Rahim Khan is here. Wow. I can see a plethora of students still waiting for Khadija, I guess. And I think the girls are having a little bit of trouble. Sami Tahir, not sure who you are. Miss Simal Rizvi, you should be around here. I think on चले गए. Musa Asnan is here. Okay. Ayan is here. Abdullah Nawaz is here. Good, 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 good. Few more than I'm going to start. You guys can play on your own account. Mustafa Suhaili is here. So I'm starting, guys. And let's be with where we are because we have to cover a few things before we get to the crux of it. So it's a very fun quiz. It's not a academic quiz. Go ahead. Wow, you guys are really finding this simple. Good. Gives me a lot more confidence. Asha Amir sab jaldi se karte ja rahe hain. Shahir Khan, mera cheetah. Well done, very nice. I have a lot more students coming in. Asha Amir has done his quiz. It's just a 7-mark quiz. I just want you to understand something. Oh, Manur has done. At least Marun has done in record time. I can see that. It's good to see. Am I there, sir? If you're playing, you should be there, Seaman. And I think you are. Yes. Not attempted anything though. Oh, Bushra has got one, right? How cool. Unfortunately, my attempt just missed. You might have logged out. If you would have logged out, I am going to okay, I'll wait for 2 more minutes before I'll start my class. Okay, Simal, no problem. We can do this. Oh, Musa Aslan scored 7 on 7. Wow. Fantastic.
7 questions. How many zeros in a billion? 3 people got that incorrect. I would really want to know who they are. What is the approximate population of Pakistan? So 7 people got that incorrect. As of today, 9th August, $1 is between 8 people got that wrong. Which one of these have been used as a currency? And only 4 people got this correct. Right, 16, because I'm sure you wouldn't have believed that one of these could be used as a currency. Which one of these companies has the highest revenue in the world in terms of sales? And 9 of you got that correct and 11 of you got that wrong, and I'm sure you must have voted for Apple. Which fast food chain has the most number of branches in the world? 3 people got correct and 16 incorrect. Now let me tell you, my dear friends, why did I give you this? Welcome to Economics AS 101 with me, Mohammad Raza, 9708. There are 2 ways to do economics AS. Either you can do the way which you were doing, you cram up your book, you cram up your marking scheme, you learn everything, which will be fine, and you can put a good grade. Or you could fall in love with the subject, understand the importance of this, and embrace it as a subject and move forward. So there are 2 options. The reason I gave you these questions is because you can see that the children who are usually very good in their academics will not do very well in questions like these, although these are all economics questions. None of these questions are those which do not have an economic implication. We are very eager to study new things without applying them in our lives. Economics is one thing which can be applied in any scenario, and it is going to be with you. It is with you, and it is going to be with you till you go to the grave. जो भी डिसीजन आपने आज तक लिया है और आज आप करेंगे, जहां पे भी वर्ड चॉइस का आएगा, आपको चुनना पड़ेगा या ये या वो, वहां पे इकोनॉमिक्स शुरू हो जाती है. अल्लाह ताला ने इकोनॉमिक्स एक जगह पे खत्म कर दी है और वो है बरज़ख में, दोज़ख और जन्नत में. देयर इज नो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वहां पे आपको चूज नहीं करना, आपके साथ आपकी जियाफत हो रही होगी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव डन. ठीक है, पीप का पानी और जो है ना वो आग की सीख से आपकी जो है वो हो रही होगी खातिर तवाज़ो, या दूध की नहरें आप पी रही होंगी और आप पीते चले जाएंगे. वहां पे कोई चीज आपके लिए महदूद नहीं है, आपके लिए लिमिटेड नहीं है, वहां पे इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं है. लेकिन जहां पे भी आप इकोनॉमिक दुनिया में हैं और जहां पे भी आपको कोई डिसीजन लेना है, इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी विद यू एंड यू हैव टू एम्ब्रेस इकोनॉमिक्स. All these questions which we have just done, they are directly related with your syllabus. You may not understand this. Bushra has done well. So good, it has given me a lot of heart, and I'll tell you why. How many zeros in a billion? You can never understand how the economy of the world works if you do not put a number to it. Billion में 9 जीरो होते हैं, ट्रिलियन में 12 होते हैं, मिलियन में 6 होते हैं. ठीक है, और उसी तरीके से फिर क्वाड्रिलियन है, फिर क्विंटिलियन है, सिक्सटिलियन है, हेप्टिलियन है, ऑक्टिलियन है, और फिर जो आखिरी जो है जो उनके 10⁻30 जीरोस है वो नाइनोलियन है, नाइनोलियन जिसको प्रोनाउंस करते हैं. और गोगोल जो है, जो से लफ्ज गूगल निकला है, दैट इज 10 to the power raised of 100. 10 के पीछे अगर 100 जीरोस लगा दिए जाए तो गोगोल बनता है एक लफ्ज, उसको गोगोल कहते हैं उस फिगर को, और वहां से निकला है गूगल. That is the etymology of the word Google, google.com. What is the approximate population of Pakistan? Pakistan is the 5th largest. Oh wow, it's completed. Musa is number 1, Shaheen number 2, and Mohammed Ibrahim number 3. Familiar faces, but definitely not what I am familiar with seeing in my classes. Anyway, coming back. Pakistan is the 5th largest country in the world, 34th largest Raqba, right? दुनिया के अंदर 198 मुल्कों में से 206 मुल्कों में से जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन है, पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है. The second largest Muslim country in the world, the first largest is Indonesia. How do you cater to 200 million people? Right? We are greater than 7 or 8 European countries combined. We are greater than the Middle East. Okay, how do we manage the resources which Allah Ta'ala has given us to satisfy these people? What are the challenges of having a large population? What are the challenges of having a small population? What are the challenges of having such a large population with lower incomes? Welcome to economics. Welcome to questions which you will be solving as economists.
As of today, $1 is between, and it is between 163 to 165. That is the answer. 160. बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई आप लुक अराउंड यू, अलावा इंपोर्ट्स के आप क्या करते हो, हर चीज आपकी इंपोर्ट पे है। पेट्रोल आपकी गाड़ी में इंपोर्ट का है, आप जो कपड़े पहनते हो उसके अंदर ब्रांडेड इंपोर्टेड है, जो बालों पे आप प्रोडक्ट लगाते हो, जो मुंह पे आप फाउंडेशन लगाते हो, जो नेल पॉलिश आप लगाते हो, वो पाकिस्तान में बनती है, बाहर से आती है। The dollar versus rupee exchange rate changes, everything around you changes. आपको आपकी अपनी तनख्वाह कम लगने लगेगी, क्यों? क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स अगर महंगी हो गई हैं तो आप तो लोकल प्रोडक्ट लोगे नहीं, वही आपको बाहर की चीजें चाहिए, वही आपको बाहर का ब्रांड चाहिए, वही आपको बाहर की कंफर्ट चाहिए। आप प्रोडक्ट भी जो है, जो अगर आप Xiaomi भी लेते हो एज अ मोबाइल फोन, Redmi भी लेते हो, नॉट एप्पल और सैमसंग, इवन दैट इज इम्पोर्टेड। सो एवरीथिंग इज अफेक्टेड बाय द डॉलर एंड रुपी रेट. If you're not aware of this, you will not be able to understand what it actually does to you. I want my children to be aware. I want my children to be smart. नहीं समझ में आएगा, मैं पीछे खड़ा हूँ, मगर मुझे ये बहुत अफसोस होगा कि आप पूरा चैप्टर पढ़ लें और नंबर भी आपके अच्छे आ जाएं, लेकिन you can't even have a decent conversation about economics. You're not able to understand one article written about economics in the paper. मैं ये नहीं चाहता. I want you to embrace the subject. I want you to be the students of economics. नंबर खुद ब खुद आ जाएगा, ये याद रखें आप. आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप वो कॉम हो, एक दफा आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, आप पूरी रात बेंच करते हो 18 घंटे किसी टीवी शो के, आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, पूरी रात पबजी के चैंपियन बनते हो आप, उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक कि आप सीखते नहीं हो और कोई मेडल नहीं ले लेते. ये तो आपकी लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन है. ये इकोनॉमिक्स में क्यों नहीं हो सकती? बस इंटरेस्ट ढूंढने वाली बात है. And before starting with boring mundane stuff, this is the thing which I wanted to start with. I wanted you to realize how essential, how realistic, how tangible economics is around you. Right? I hope I'm clear. Which one of these have been used as a currency? This is my favorite question. And currency is the chapter पूरा money and banking. Economics में जो बच्चे पढ़ के आए हैं O levels में, वो जानते हैं कि money और banking का एक पूरा एक बड़ा chapter है और एक section है इकोनॉमिक्स में. उसी तरीके से मनी आपके एक यूनिट है इकोनॉमिक्स के अंदर AS में. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई करेंसी इज इंपॉर्टेंट फॉर अ मार्केट इकोनॉमी. यूरिन, आपका जो पेशाब है, that is also used as a currency. It has been used as a currency and it is still used as a currency in jails. Why? क्योंकि हम करेंसी को क्या समझते हैं? पैसा, नोट. Currency is anything which can be used to buy other things in exchange of. Urine, shells, dolphin teeth have all been used as currencies. This is Google friendly. You can check on it and you will get to know. Which one of these companies has the highest revenue in the world in terms of sales? And that is Walmart. That is Walmart. Sinopec is a national grid company of China. It is a state-owned company, I think gas की. Royal Dutch Shell is Shell का पेट्रोल पंप. और Apple आप सब जानते हैं, Apple सेब बनाने वाली कंपनी नहीं, जस्ट किडिंग, फोन बनाने वाली कंपनी, राइट? स्टीव जॉब्स वाली, जिनका इंतकाल हो गया काफी अर्से पहले. सो Walmart is the largest company in the world. Revenue is income. दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली रिटेल आउटलेट है, सुपरमार्केट. Walmart एक सुपरमार्केट है अमेरिका में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड. हम पढ़ेंगे इसके बारे में. और यहाँ पे हम क्यों पढ़ेंगे ये? क्योंकि हमें मोनोपोली समझने में आसानी होगी. बिग कॉर्पोरेशन होना चाहिए या स्मॉल कॉर्पोरेशन होना चाहिए? बिग कॉर्पोरेशन के फायदे क्या है, हमें क्या मिलेगा? हमें ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाए, हमारा ग्रेड हमारे हाथ में. Which fast food chain has the most number of branches in the world? I knew most of you will not get this correct, but it is Starbucks with around 45,000 outlets in the world. और इसकी सारी की सारी कामयाबी इसकी इकोनॉमिक मॉडल में है. It is not, the franchises are not invested in by one person. Every different Subway you see is owned by a different owner. It is a franchise owned by a different owner. पाकिस्तान में जितनी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजेज हैं वो सारी की सारी लैक्सन के पास है, लखानी एंड सन्स. जितनी KFC हैं वो रफीक रंगून वाला लेकर आए थे, कपूरा ग्रुप वाले. ठीक है, जितनी KFC की ब्रांचेस हैं, जितनी बर्गर किंग की ब्रांचेस हैं, वो सुपर एशिया ग्रुप लेकर आया था. सॉरी, वो
MCR लेकर आया था, पिज्जा हट वाला। जितनी हार्डीज की ब्रांचेस हैं वो हैं सुपर एशिया ग्रुप की, मगर जितनी सर्विस आपको पाकिस्तान में दुनिया भर में नजर आएंगी, हर एक का जो फ्रेंचाइज ओनर है वो अलग है, तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। पीपल ऑफ विच कंट्री पे द हाईएस्ट टैक्स ऑन देयर इनकम्स परसेंटेज वाइज, एंड दिस इज स्वीडन। हम स्वीडन में जाके रहना पसंद करते हैं, हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह। वहां वहां पे जो है वो हर चीज स्टेट प्रोवाइड करती है, हेल्थ वहां पे स्टेट प्रोवाइड करता है, एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करता है। प्रॉब्लम ये है भाई कि आपको ये नहीं अंदाजा कि आपका मुल्क सबसे कम टैक्स देता है, इसीलिए आपकी घर की सड़क नहीं बनती, इसलिए आपके घर के आगे जो नाला बह रहा है वो बहता रहता है, बिकॉज आप टैक्स देते कहाँ हो, आपको बचाने में नंबर 1 पहले पहल करते हो। यू फाइंड आउट वेज, यू पे पीपल टू टेल यू वेज ऑफ हाउ टू नॉट पे टैक्सेस ऑन योर इनकम। स्वीडन में टैक्स रेट इज 56.6% ऑन योर इनकम। the person who earns the maximum pay, जो उनका मैक्सिमम स्लैब है तनख्वाह का, लेट्स से वहां का बंदा मैक्सिमम जो है वो 1 लाख रुपए कमाता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसमें से 56% वो हुकूमत को दे देता है, यानी उसके पास जेब में कितना बचता है, 43% या 47% टू स्पेंड। बात समझ में आ रही है? 47,000 रुपए कमाता कितना है वो, 1 लाख, खर्च कितना करता है, 44,000 रुपए, क्योंकि सारा हुकूमत ले जाती है। आपके यहाँ टैक्स रेट कितना है, 17%, और टैक्स इतने लोग देते हैं 3% ऑफ योर एंटायर 220 मिलियन। खैर वो तो सब पे अप्लाई भी नहीं होता, जो जिन पे होता है उनकी बात कर रहा हूं। एंड टैक्स के बगैर गवर्नमेंट नहीं चलती, टैक्स के बगैर गवर्नमेंट नहीं चलती। एंड माय फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर स्टडीइंग द इकोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खर्चा कैसे करती है, गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी कैसे चलाती है, आपको ये पता नहीं चलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू कंपेयर कंट्रीज टुगेदर, राइट? Has it opened your perspective? Did you find it helpful? Yes and no. Did you find it helpful? Yes or no? Chat पे मुझे जल्दी से, if you found this helpful, yes. If you didn't find this helpful, no. Great, 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 great. Good, good, good. Shabash, 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 shabash. Thank you. Thank you for your kind words. It only helps me grow. Thank you. आ जाएं जी बोरिंग चीजों पे। So today is orientation session and your my kids, Sir Razaz, MRH is my name, Mohammad Raza Hussain, and this is Economics 90708. I am an MBA from IBA. I did my MBA in 2009 and I have 12 years of professional working experience. You'll get to know about it as we discuss. मैं बहुत कहानी सुनाता हूँ। Professionally teaching since 2018 and I've been teaching AS Economics, Business Studies, A2 Economics, Business Studies and O-Level Economics and Global Perspectives at WHSS and Grange College. And that is about it. उसके अलावा I'm the best teacher in the world. Anyway, those who don't know me, those who know me, they know that I'm lying. Anyway, your book, this is Colin Bramford's, Mark Collins. ये जो है बेसिकली तस्वीर ठीक नहीं है, ये इसकी रिसोर्स, टीचर्स रिसोर्स की तस्वीर दी हुई है। इसका जो बुक का कवर है वो ऐसे ही होगा, बट द ऑथर इज कॉलिन ब्रैमफोर्ड। The author is Colin Bramford. Please understand that for AS and A2, those students who will stick with me for A2, I will be providing you notes. But आपका जो पहला किबला है, वो जो पहली चीज आपको पढ़नी है जाके, that is your book. If you do not have Colin Bramford, get it today. I will be posting the PDF on the group so it becomes easier for you to understand. What is the course breakup? What does the course look like? So this is the course breakup. And my course is divided into 6 basic units: basic economic ideas and resource allocation, the price system and the microeconomy, government intervention, macroeconomy, government intervention, macro, and international economic issues. Basic economic ideas and resource allocation में सबसे पहले हम पढ़ेंगे economic problem क्या होता है. People who have done this in O levels will find this to be no problem. People who have not done this in O levels will find it easier. ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपको जब पता लगेगा तो आप बोलेंगे अरे यार इतना सा मसला,
choice. Whenever there are resources, आपको choice लेनी पड़ती है. जहां पे आपको कुछ बनाना पड़े, कोई डिसीजन लेना पड़े, वहां पे आपको चॉइस करनी पड़ती है. उससे क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, FOP stands for factors of production. They are those good things which will help in providing goods and services for the economy. इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता. हमारी सारी ख्वाहिशात, हमारी सारी नीड्स, हमारी सारी वांट्स कहाँ आकर टूटती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज पे, राइट? क्या हमारे चाइनीज मोबाइल से मसला हल नहीं होता? होता है. हमें एप्पल क्यों चाहिए होता है? बिकॉज वी डोंट नीड अ फोन टू टॉक, वी नीड अ फोन टू शो ऑफ. दैट मींस देयर आर अदर नीड्स व्हिच कैन बी फुलफिल्ड, एंड व्हाट फुलफिल्स देम? किस तरह से पूरी होती है शो ऑफिंग की नीड? बाय द फोन. और फोन बनाने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, ये मजे की चीजें करेंगे. और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये बैकबोन है आपका सेक्शन 1 का. इकोनॉमिक्स में ओ लेवल्स में जो बच्चे कर चुके हैं, वो अब जब ए लेवल्स में आएंगे उनको रिलेटिवली इतना मसला नहीं होगा. मैं एज अ टीचर इस पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाऊंगा इन ए लेवल्स, ताकि मैं अपने बच्चों को टू स्पीड ले आऊं. देखो बेटा, मेरा मॉडल बहुत सिंपल है. दिस इज अ क्लासरूम, दिस इज नॉट अ कोचिंग सेंटर. I will come to your level, I will take you as a class. Those people who are getting bored, I will give you more advanced stuff to do. But I am a teacher for everyone. हम किसी को छोड़ के नहीं जाते कि नहीं समझ में आ रहा तो तुम जाओ यार कुछ और ढूंढ लो. नहीं भाईजान, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपका काम है मुझे बताना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा. देखो यार, एक बात मैं आपको बड़ी मजे की बताता हूँ, मुझ पे वही नहीं आती. सही है? इफ यू थिंक मेरी वही मुझ पे वही आती है तो यू आर सॉर्टली मिस्टेकन. मुझे मुझ पे वही नाजिल नहीं होती. नाजुबिल्लाह. मुझे नहीं पता चलेगा unless and until you will tell me कि मुझे जो है वो समझ में आ रहा है, और आपने मुझसे सच बोलना है. That is it. That is your job. You do that, I will do the rest. Then we move to the price system and the microeconomy. Microeconomy का मतलब होता है studying of the economy as individual unit. ठीक है? For example, demand for chocolates, demand for labor, demand for roti, demand for chawal, demand for kapde, demand for games, demand for PUBG, demand for Sims, demand for marriages, demand for marriage rings, or the demand for one particular demand and supply of the market for one particular good is microeconomy. तो यहाँ पे हम समझेंगे what is the notion behind the power of demand and supply. ये क्या होता है यार? और भाई ये समझ लिया ना, ओ हो हलवा. हलवा ASK पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ऐसे लिखना होता है. भाईजान छा जाओगे आप. ठीक है, कोई मसला नहीं है. PED, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इलास्टिसिटी बोले तो रिस्पॉन्सिवनेस. अभी हम पढ़ेंगे. आप लोग सारे के सारे, आप लोगों ने एक लफ्ज सुना होगा, आपके पेरेंट्स ने आपको कभी ना कभी किसी बड़े ने बोला होगा, कितने ढीठ हो गए हो. ढीठ हो गए हो का क्या मतलब है? आप पे किसी चीज का असर नहीं पड़ा. तो यानी कि यू हैव बिकम inelastic to your mother's or father's advices. You have become inelastic to your mother and father's डांट. ठीक हो गए हो, किसी बात का असर नहीं चल पड़ता, जो नहीं रेंगती है, यानी कि यू आर inelastic. बैठे में गौतम बुद्ध की तरह, असर नहीं पड़ रहा. inelastic प्रोडक्ट कौन सा होता है? पत्थर. इलास्टिक है, inelastic है? inelastic है ना भाइयों और बहनों. आप पत्थर के ऊपर फोर्स डालोगे, आप पत्थर को दोनों हिस्से से पकड़ के हाथ से खींचने की कोशिश करोगे, वो खींचेगा नहीं. रबर बैंड खिंच जाएगा, यानी कि आपके फोर्स आप डालोगे उसका असर रबर बैंड पे पड़ेगा, मगर आपके फोर्स से का असर पत्थर पे नहीं पड़ेगा. वो टूट जाएगा मगर वो स्ट्रेच नहीं होगा. इट इज इनइलास्टिक. तो ये हम पढ़ेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, कौन से प्रोडक्ट हैं जिनकी प्राइस का चेंज से कोई असर नहीं पड़ता. बड़ा मजा आएगा आपको. और सप्लाई भी. और देयर आर other cross elasticities also which we will be doing. So yeah, different things. Price mechanism, then government intervention. Intervention का क्या मतलब है? मुदाखलत. गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? Consequences, गवर्नमेंट के बीच में घुसने से. फॉर एग्जाम्पल, मानूर मेरी एम्प्लॉयर है, मैं मानूर का एम्प्लॉय हूँ. मानूर कहती है कि मैं आपको तनख्वाह दूंगी. मैं कहता हूँ ठीक है, कितनी? वो कहती है 20,000 रुपए. मैं कहता हूँ सेट है. हुकूमत बीच में करती है और कहती है कि नहीं,
आप कितने अर्से काम कर रहे हो मानूर के पास में? कहूंगा कि हफ्ते में 5 दिन 8 घंटा पर डे, यानी कि 40 घंटे पर वीक। वो बोलेगा भाई जो बंदा 40 घंटे पर वीक काम करेगा उसकी मिनिमम वेज 21,650 है। हमें नहीं पता मानूर, इसको दो 21,650। तो गवर्नमेंट बीच में घुस रही है, गवर्नमेंट बीच में घुस रही है और वो अपनी मर्जी से काम करा रही। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि उसके लोगों को तनख्वाहें ज्यादा मिले ताकि वो ज्यादा खर्च सकें, ताकि वहां का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, ताकि पॉवर्टी कम हो। मगर क्या ये बात मानूर को पसंद आएगी? एब्सोल्युटली नॉट। वो तो उसके वो मेरे वैसे ही पैसे गम गोल करने के चक्कर में थी। मैं नहीं देर से आता मेरे 500 रुपए काट लेती, मैं नहीं आता मेरे 1000 रुपए काट लेती, राइट। मैं जबान चलाता 100 रुपए काट जाती, कहती मैं आइंदा दे दूंगी। वो तो इस चक्कर में थी और गवर्नमेंट ने उनको कह दिया कि नहीं 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 भाईजान, ऐथे ऐथे हक पूरा करो, राइट। तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है और वो हम पढ़ेंगे कैसे, राइट। राइट। इनकम एंड वेल्थ। इनकम आपकी जो बेटा कमाई है, और वेल्थ आपके एसेट्स। ये क्या है, इसमें इनइक्वालिटी कैसी होती है हम पढ़ेंगे। फिर हम आ जाएंगे मजे। अच्छा, ये जो पहले 3 डब्बे आपने देखे, दिस इज द माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी खत्म हो जाएगा और आखिरी 3 डब्बे आकर मैक्रो इकोनॉमी। हुकूमत के बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं इकोनॉमी एज अ होल, माइक्रो में हम पढ़ते हैं डिमांड फॉर चॉकलेट्स, डिमांड फॉर क्लोथ्स, मगर मैक्रो इकोनॉमी में हम टोटल डिमांड के बारे में बात करते हैं, डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा हम पहले ये पता करने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, व्हाट डज द गवर्नमेंट एक्चुअली वांट टू डू। देन वी टॉक अबाउट द फिस्कल पॉलिसीज। शहीद, इफ यू वांट टू गो एंड ऑफर योर प्रेस, प्लीज गो। फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज क्या होती हैं? और बेसिकली ये वो पॉलिसीज हैं जिससे हुकूमत अपनी डिमांड को कंट्रोल करती है, उससे उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं। बहुत बेसिक चीज है, मजा आएगा आपको। सप्लाई साइड पॉलिसी का ताल्लुक है कि गवर्नमेंट अपने इकोनॉमी के अंदर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए क्या कदम लेती है। लोगों को पढ़ाना, लोगों की एजुकेशन पे काम करना, ठीक है, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, उनके लिए जॉब्स करना, उनकी मोबिलिटी को बेहतर बनाना, ठीक है। हुकूमत ये ट्रेन में क्यों डालती है? ट्रेन में इन्वेस्ट करेगी तो वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच के काम कर सकेंगे, उनको नौकरी के मौके मिलेंगे, राइट। तो ये सब सारी सप्लाई साइड पॉलिसीज है, इजी पीजी जापानीज। देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन मैक्रो, मेजरिंग ग्रोथ। मेजरिंग ग्रोथ का क्या मतलब है? हाउ डू यू मेजर ग्रोथ? व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू प्रोड्यूस ईच ईयर। हर इकोनॉमी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है। पाकिस्तान आम प्रोड्यूस करता है, राइस प्रोड्यूस करता है, टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, और बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में बनती हैं। बेवकूफ बनने के अलावा पाकिस्तान में और बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो वो जो सारी चीजें हैं वो हमारे पूरे साल की ग्रोथ में शामिल होती हैं कि हमने कितना प्रोड्यूस किया, ठीक है। अगर हमने इस साल पिछले साल से ज्यादा प्रोड्यूस किया तो हम ग्रो कर रहे हैं। इस साल हमने पिछले साल से कम प्रोड्यूस कर रहा है किया है, हम डिक्लाइन में। बस इससे ज्यादा और क्या बात। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये इंपॉर्टेंट चीज हम करेंगे। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, सारा का सारा फसाद इसका है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन्फ्लेशन किस तरीके से मेजर करते हैं और उसको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी कम टू द इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हिच इज इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। Comparative advantage, why do we trade, what is globalization, import and export, protectionism, how can you stay safe from imports, how can imports and dumping hurt you, what you can do against it. Then balance of payment, what a great topic. It has such a big far reaching effect on all other topics. Exchange rates, ठीक है, एंड उसके साथ हम अपना टॉपिक खत्म कर देंगे। अच्छा भाइयों और बहनों, मुझे पता है कि जिन बच्चों ने ओ लेवल स्ट्रीम में इकोनॉमिक्स नहीं किया उनके सर के ऊपर से बहुत सारी चीजें गुजर गई, कोई मसला नहीं है। मेरा काम है आपको बताना कि व्हाट यू गेटिंग इनटू। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पूरे साल में हमें करना क्या है। क्योंकि बेटा ये जो क्लास है ना, ये मेरी और आपकी है, यानी ये ना आपकी क्लास है, ये ना मेरी क्लास है। इसका मतलब एक ग्रेड ना आपकी अपनी मेहनत से आएगा ना मेरी अकेले की मेहनत से आएगा, ये दोनों की मेहनत से आएगा। जब तक आपको ये पता नहीं होगा where do you have to go, you will not be able to work the required number of hours. If you are not able to put in the required number of hours or effort, तो फिर ग्रेड तो बहुत दूर की बात है, तो फिर तो बचने की बात होती है। आप पबजी खेलो, आप नेटफ्लिक्स देखना है,
देखो, आप एनिमे सुबह से शाम लगे रहो, आप वीलॉगिंग करते हो, करते रहो, आप बच्चे से बात करते हो, करो, दैट इज योर पर्सनल मामला. इट शुड नॉट गेट इन माई ग्रेड, इट शुड नॉट गेट इन द वे ऑफ माई स्टडीज. मुझे मेरा घंटा दे दो दिन का, 40 मिनट दे दो, उसके बाद रिकैप करने के, बस भाईजान पे जो तुमने करना करो. तुम सुबह उठ के इकोनॉमिक्स को 40 मिनट दो फजर के बाद, मैं पूरा दिन पलट के आपसे नहीं पूछूंगा इकोनॉमिक्स कितना पढ़ा. ठीक है? हाउ डज योर पेपर लुक लाइक? देखो बेटा, यू विल बी डूइंग 4 पेपर्स. I have shown you only 3. Why? I'll tell you. You are going to give your AS in 2022. In your AS paper, there are going to be 2 papers, paper 1 and paper 2. The paper 1 is going to be 30 MCQs. Paper 2 would be a structured essay based and case study based paper. घबराना नहीं है, सिंपल. मगर भाइयों और बहनों, आपके साथ गेम होने वाली है 2023 में. जब आप दोगे A2, you will be the first batch who is going to give a completely different paper with a completely different pattern and a completely, not a completely different syllabus, but with a different syllabus. So AS tak you will be doing the last syllabus and the paper pattern. 2023 में हर चीज बदल जाएगी. बिजनेस में भी ऐसा ही है. जो सूरती साहब से पढ़ रहे हैं, दानिश तबस्सुम साहब से पढ़ रहे हैं, वो आपको बेहतर बता देंगे. दे विल बी गाइडिंग यू. बट इन A2 2023, जो बच्चे 2023 में A2 देंगे, उनको डिफरेंट पेपर मिलेगा जो अभी तक पास पेपर्स नेट पे हैं उससे मुख्तलिफ मिलेगा. A2 का, AS का तो वही है जो चल रहा है. AS में मसला नहीं है आपको. इसीलिए बेटा आई हैव हिडन A2 एंड आई हैव केप्ट AS सो दैट वी फोकस ऑन दिस राइट. Paper 2 data response and essay में section A is one data response question, which means it is a case study of 20 marks. Calculation वगैरह अगर जो भी पेपर में पूछनी होती है वो यहाँ पर आती है. Section B one structured essay from a choice of 3. आपको 3 क्वेश्चन में से कोई एक करना है. ना मैक्रो माइक्रो की कोई कैद है. You can choose any one of the 3. आए हाय. And every question has 3 parts, A and B. 8 मार्क का और एक 12 मार्क का. यानी कि सेक्शन बी में एक क्वेश्चन 20 मार्क का होता है. सेक्शन ए सेक्शन बी मिला के 40 मार्क्स, यानी कि योर पेपर 2 इज ऑफ 40 मार्क्स. ठीक है? आप सोचो, इवन इफ यू डू द फर्स्ट 3 पार्ट्स, एंड मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो बेटा, आपको अल्लाह ताला ने इस साल तक के लिए एक इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है टू गेट गुड मार्क्स. इवन इफ यू डू दिस पार्ट, सबसे बेहतर, सबसे अच्छे से ये कर लो कि इसमें अगर क्वेश्चन आ गया तो कहीं नंबर ना कटे. और इनको कच्चा पक्का भी कर लो. ये जो बाकी 3 है, इनको कच्चा पक्का भी कर लो, तब भी आपके A तक B तक आ सकता है. यू अंडरस्टैंड? दिस इज व्हाई आई हैव ब्रोकन डाउन दिस. 2023 में जो बच्चा AS में बैठेगा उसको माइक्रो से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मैक्रो से करना पड़ेगा. तो उसको मैक्रो भी उतना अच्छा करना पड़ेगा जितना माइक्रो. लेकिन आप लोगों के लिए फायदा ये है कि आप एक टॉपिक को, एक सेक्शन को पक्का कर सकते हो. पक्का. देखो भाई, बेसिक प्रॉब्लम पे एक क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर का एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 3 में से इस पे आएगा, 3 में से दूसरा क्वेश्चन इस पर होगा, और आखिरी क्वेश्चन इनमें से होगा. कभी इस पे से आ जाएगा, कभी इनमें से आ जाएगा. ज्यादातर एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे. सो इफ यू डिवाइड योर स्टडीज बाय दिस, यू डू द फर्स्ट 3 यूनिट्स पक्के से. ठीक है? तो स्काई इज द लिमिट गाइस. कुछ क्लैरिटी आ रही है? कुछ सांस में सांस आ रही है? Okay. I am also telling you how you can gain marks. I am also telling you how you can gain marks, how you can ace. Okay. So I am right here to push you in the right direction. And आगे चलो. Command word. Marks तो चलो अभी हम देख लेंगे. अगर word calculate आता है तो आपने क्या लिखना है? Work out using the information provided. Define. Give the exact meaning of. Book की definition लिखनी है. Describe में डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन लिखना है.
आइडेंटिफाई, नेम द की नॉलेज पॉइंट लिखना है। अभी हम सब करेंगे, एओस क्या होते हैं, इट इज टू अर्ली। सो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 क्या है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 क्या है, व्हाट इज द एग्जामिनर एक्सपेक्टिंग ऑफ यू, वी विल डू दिस इन डिटेल। Those who have studied those who have studied from me in O-level economics understand that I go through the marking scheme very carefully and I explain everything to you so that it becomes clearer. देखो, Mohammad Raza Hussain is not the only person you should rely on. Rely on the marking scheme and the examiner report while solving the question so that you understand how do you have to attempt it. ठीक है? उसी तरीके से स्टेट है, स्टेट में आपने कुछ नहीं देना, सिर्फ आपने ऊपर ऊपर से चीजें आउटलाइन करनी है। एनालाइज में कॉज एंड इफेक्ट दिखाना है। अगर मैं शहीर के ऊपर पानी का एक ग्लास डालूंगा इस वक्त तो क्या होगा, सबसे पहले चीज क्या होगी, ठीक है, उसको मैं एनालाइज करूंगा, तो फिर क्यों, फिर उसको मैं एनालाइज करूंगा। कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है कंपेयर द डिफरेंसेस। आपने, और ये इसके कंपेयर के क्वेश्चंस रिलेटिवली कम होते हैं, 2023 से शायद आना शुरू हो गया। बेसिकली जो आपको जिस चीज पर फोकस करना है वो जस्टिफाई, डिस्कस और इवैल्यूएट पे करना है। इसके अंदर आप क्या देते हैं, व्हाट इज इवैल्यूएशन, कैन एनीवन राइट ऑन द चैट व्हाट इज इवैल्यूएशन? कैन एनीवन राइट? ओपिनियन, क्लोज, व्हाट इज इवैल्यूएशन? Can anyone write both sides? पता नहीं, बिल्कुल both sides नहीं। Evaluation का मतलब होता है contrasting viewpoints. When you are looking at a problem from different angles. सही है? शहीर हेड बॉय बहुत अच्छा था, मगर टा 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 टा। Giving all the facts gives you a conclusion. जी बिल्कुल, very good. Abdullah Nawaz's calculated conclusion, very good. फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज करके अपनी किसी स्टेटमेंट को अपनी साइड से जजमेंट देनी होती है। ट्रू, बट दिस इज ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज कि वो जो चीज आप इग्नोर कर रहे हो उसको आपने बताना है कि वो इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, एक है बीना और एक है टीना, शादी एक से होनी है। बीना खाना बहुत अच्छा बनाती है, टीना जो है ना वो कपड़े बहुत अच्छे से करती है। आप अगर इसको चूज करेंगे तो क्या छोड़ रहे हैं और इसको चूज करेंगे तो क्या छोड़ रहे हैं। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपने दोनों एस्पेक्ट्स को फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स। प्रॉब्ली you own a laundry shop, you don't need to have a wife which is going to iron your clothes. People, probably you work in a restaurant, you don't need to get a person who's going to cook for you. So you have to understand that you have to evaluate options looking at things from different angles. जी बिल्कुल। अच्छा, before I end today's session, this is overall overview. How are we going to go about it? We have a Google Classroom. जब तक हमारी ऑनलाइन सेशन रहता है हम जो है वो क्लास जूम पे देंगे। असाइनमेंट दिन का दिन उसी वक्त गूगल क्लासरूम पे आ जाएगा, छोटा सा होगा, आप करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। किताब पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू डू। ये आप लेकर रख लें सो दैट हमारे पास जो है वो किसी किस्म की हिंड्रेंस नहीं हो। राइट, ये क्लियर हो गई बात? आई होप दिस इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अच्छा, नाउ बिफोर एवरीथिंग कैन आई आस्क यू टू प्लीज लेट मी नो, और सिर्फ वो आंसर करें जिनने इकोनॉमिक्स ओ लेवल्स में नहीं पढ़ी। ठीक है? नो, आप किताब का पीडीएफ भेज सकते हैं, जी मैं अभी अपलोड करूँ। आपने सिर्फ लिखना है नो, जिन्होंने इकोनॉमिक्स ओ लेवल्स में नहीं पढ़ी, जस्ट राइट नो। ओह वाओ, नो नो, ओह माय गुडनेस, नो। ओके, गुड, आई एम ग्लैड। सारे केमिस्ट्री से भाग के आए हो ना? हैं? सारे के सारे केमिस्ट्री से भाग के आए हो? Right, no problem. This is a great subject. I'm glad to have you, and inshallah ta'ala looking forward for a great learning experience together. On a scale of 1 to 10, 10 being clarity of objectives and 0 being not clear, how was today's class? Just rate. तारीफें नहीं करनी बस। Thank you. Wait, Hassan Ali is part 2, please. Okay.
Oh, thank you. Thank you. Thank you. Well, guys, that's up all from my side. Have a great lunch. Have a great day. I want to know you better. This is my class. I want to know you better. I want your first assignment. I want you to write a few words about yourself and send it to me. I'll be posting it as an assignment, but I don't want it to be boring. I want you to be as colorful as you can. So if you can do a 60-second video, or if not a video, just a voice message. If you are too shy or if you don't want to share your video, it's fine. Just a voice message, post it on the group, right? ये फिजिकल में करने में मजा आएगा, बिल्कुल आएगा, I understand. लेकिन डार्लिंग, I do not know, हो सकता क्लास आगे बढ़ चुकी होगी, so you know, मैं आपको एम्बैरेस करता रहूंगा, टेंशन नहीं लें. जो आप मुझे बोलते रहेंगे ना, वैसे आपको याद करवाता रहूंगा. अच्छा तुम वही हो ना, कार्टून? सही है, मैं आपको करवाता रहूंगा, आप टेंशन नहीं लो. ठीक है? So I hope you guys have fun. Take care. Thank you. And inshallah, looking forward for a great learning experience. Amen.